آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ سو آئے ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پہ آمین۔ خدا ان کلام کو سمجھنے کا فضل دے، آمین۔ آئیں کلام خدا کو ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، قصور ان کا بھی تھا، خطا ہماری بھی تھی۔ جشن آزادی کے موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنگ و جدل اور خون دونوں سائڈوں پہ بہا۔ تو میں آغاز سے پہلے معافی مانگتا ہوں جن کا ہماری طرف سے خون بہایا گیا اور جنہوں نے ہمارا خون بہایا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ تو آئیں کلام خدا کو سیکھیں، کیونکہ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے، ہماری شفا، ہمارا معجزہ، ہماری بحالی رکی رہے گی۔ تو آئیں کلام خدا کو سیکھیں۔ غلطیوں 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں ملک پاکستان کی آزادی کی بات کروں، اور بھی کئی ایک ملک دیس آزاد ہوئے ہیں۔ 4 جولائی کو امریکہ جشن آزادی کا دن مناتا ہے، 14 اگست کو ہم یعنی پاکستان، 15 اگست کو انڈیا بھارت، اور 14 مئی کو اسرائیل 1948 میں، یعنی کہ 1 سال بعد ہمارے وہ آزاد ہوئے۔ اور سال کے بعد جب یہ دن آتا ہے تو وہ 1 منٹ کے لیے سائلنٹ ہو جاتے ہیں، جہاں کہیں ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت، اس دور میں جب 60 لاکھ یہودی مارے گئے، تو ان کی یاد میں بھی وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تبرک یعنی کہ لیبیا، یہ بھی آزاد ہوا۔ تو کلام خدا میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ اور مجھے یاد آتا ہے مسیح یسوع نے متی کی انجیل 12ویں باب کی 43ویں آیت سے 45ویں آیت میں فرمایا کہ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے، وہ پھر رخ کرتی ہے کہ جائے اور دیکھے کہ اگر اس کے لیے جگہ گھر آراستہ ہے تو وہ وہاں پہ قیام کرے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں میں آپ کو، ایک اور حوالے کے بعد، خروج 14ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا، جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ فرعون چاہتا ہے کہ دوبارہ اسرائیلیوں کو اپنا کیا بنا لے، غلام بنا لے۔ ناپاک روح کا بھی بتایا میں نے آپ کو، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ جنگ ہوئی 47 میں، جب پارٹیشن ہوا تب بھی خون بہا، پھر 65 میں جنگ ہوئی، پھر 71 میں جنگ ہوئی، 99 کا بتایا جاتا ہے۔ اسٹل جھڑپیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ سیاچن کے متعلق، کارگل کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو پھر کشمیر کو تو آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جگہ کے اوپر جنگ ہوتی ہے، کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ حصہ ہمارا ہے۔ اور اگر آپ اپنی آزادی کو نہیں پہچانیں گے، بدرو نکل گئی ہے، آپ خدا کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑیں گے، تو پھر دشمن آئے گا، حملہ کرے گا۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو اور اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ اوپر اگر پڑھیں تو لکھا ہے کہ
अपने आप को आज़ाद जानो, अपने आप को बीच वाली लाइन छोड़ के अपने आप को खुदा के बंदे जानो। क्यों? सबब और वजह यह है कि जब हम आज़ाद भी जानेंगे, अपने आप को खुदा के बंदे भी जानेंगे, तो इसी आज़ादी में रहते हुए इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाएं। अगर कोई मेजॉरिटी में है तो वो समझता है कि मैं जो कुछ भी मर्जी कर लूँ, ये भी गलत है। कई एक एंगल से मैं आपको समझाना बताना चाहता हूँ कि बदी का पर्दा ना बनाएं, नहीं तो खुदा की लाठी भी आवाज़ है कभी भी किसी वक्त। तो आगे बढ़ते हैं। मैं उन चंद जो मुल्क पाकिस्तान के हीरो उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन ज़बूर 37 उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। मुल्क खुदा ने दिया है और इसी मुल्क में रहते हुए खुदावंद पर तवक्कल करें और फिर नेकी करें। कलाम बयान करता है मुल्क में आबाद रहे, इसकी वफादारी से परवरिश पा। मजीद लिखा हुआ मिलता है ज़बूर 101 उसकी 6ठी आयत में, मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है वही खुदावंद की खिदमत करेगा, वही खुदावंद के साथ रहेगा और खुदा उसके। मैं बात मुल्क की कर रहा हूं और साथ ही आपको यह बताना चाहता हूं कि मुल्क के ईमानदारों पर खुदा कहता है मेरी नज़र होगी, मेरी निगाह होगी। मुझे याद आता है हवाला इस्तिस्ना का 11वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। ज़बूर 101 के मुताबिक मुल्क के ईमानदारों पर, ईमानदार किसी भी मुल्क में चला जाए, किसी भी शहर में, गांव में, इलाके में चला जाए, खुदावंद की नज़र उस ईमानदार की वजह से उस जगह पर नज़र रहती है। और इमसाल 11वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। और याकूब 5वां बाब उसकी 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मैं और आप खुदावंद के चुनिंदा चुने हुए लोग रास्तबाज काउंट होते हैं। मसीह यीशु हमारी रास्तबाजी है। पौलुस रसूल फिलिपियों 4:13 में कहते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बींगा रास्तबाज आप दुआ करने वाले, खुदावंद के मज़बा पे शिफायत और सिफारिश करने वाले हैं। मूसा के हाथ जब तक दुआ में बुलंद रहते, वो यशवा अमालिकियों पर गालब रहता। हम दुआ करने वाले हैं। दूसरा तवारीख 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को भी माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को भी बहाल करूंगा। मुल्क और कौम की तकदीर खुदा के लोग जो ईमानदार हैं उनके हाथों, उनकी दुआओं में है। कलाम का हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 13वें बाब में लिखा है 1 से 7 आयत तक, लेकिन बीच में से पढ़ता हूँ। लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। क्यों? वजह सबब क्या है कि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। जितनी भी हुकूमतें बनती हैं, निगरान हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, जिसे हम फिर इम्पोर्टेंट कहते हैं, अरे हुकूमतें कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, खुदा की तरफ से है। कलाम को लें, कलाम क्या बयान करता है कि मैं और आप खुदावंद के साथ वफादार रहें। और मजीद कलाम खुदा में लिखा हुआ मिलता है, पहला पत्र 2 बाब की 13वीं आयत में, खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो। अगर किसी मुल्क में बादशाह है तो लिखा है बादशाह के इसलिए कि वो बुजुर्ग है।
खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो। और मैं अभी आपके सामने चंद हीरो जो हो गुजरे हैं उनको सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान पे कई एक लोगों ने हुकूमत की। आर्यन, मुग़ल दौर आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी बताया जाता है कि उसने आधी दुनिया तो फतह कर ली। और फिर बरतानिया रिसेंटली जब हम आज़ाद हुए हैं, तो उस वक़्त पाकिस्तान बनने की बात हो रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मांगेगा पाकिस्तान, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। ये उस दौर की बातें हैं जब हमारे 4 लीडर जिनका पेश काम रहा है पाकिस्तान के लिए, उनमें से मैं एक का जिक्र करूंगा। बताया जाता है कि वो स्टेयर्स पे थे, सीढ़ियों पे थे, जब उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंची कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। तो बताया जाता है वो सीढ़ियों पे रुक गए। उनका नाम SP सिंघा साहब है। उन्होंने उनको जवाब दिया, अगरचे बात तो वैसे थी और शायराना अंदाज बन गया कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, ये आसान नहीं है। तो बिलाखिर पाकिस्तान वजूद में आया। तो मैं आपको उन हीरो का नाम बताना चाहता हूं जिन्होंने हिल ऑफ तिलपत्रा, पांडव के महाज पर लास नायक याकूब मसीह शहीद का जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने सब्ज हलाली परचम, पाकिस्तान का झंडा लगाते हुए अपनी जान कुर्बान की और सीना गोलियों से छलनी हुआ। लेकिन उन्होंने, क्योंकि झंडा जहां लगाया जाता है वहां ये शो किया जाता है कि ये टेरिटरी हमारी है, झंडा फतहमंदी को भी जाहिर करता है। तो लास नायक याकूब मसीह उस परचम के साए तले उन्होंने जान दी। इसी तरह स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी 65 की जंग में, फिर 71 की जंग में पेश रहे। तो 65 की जंग में वो महाज पे गए, कामयाबी के साथ लौटे। और 71 की जंग से पहले बताया जाता है कि वो PIA में डेपुटेशन पे चले गए। लेकिन जो ही पता चला कि भाई हालात ख़राब हैं, तो वो वापस आए। और उस वक़्त उस दौर के लीडर एयर कमांडर नज़ीर मसीह बताते हैं कि ये जंग आसान नहीं है, ए डू और डाई, मरो या करो, मुश्किल महाज है। पीटर क्रिस्टी ने कहा इसी वक़्त का तो इंतज़ार था। और वो इस महाज पे गए और उन्होंने अपना नाम शहीदों की लिस्ट में लिखवाया। इसी तरह 65 की जंग का अगर जिक्र करूं तो एरिक जी हॉल नाम एक हिस्ट्री है। उनके मतलब बताया जाता है कि जब पाकिस्तान में जहाज़ ना होने के बराबर थे, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत है, हमारे पास 150 और उनके पास 450, क्या मुकाबला। तो एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल, यानी जिन्हें एरिक जी हॉल भी कहा जाता है, वो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे। तो उन्होंने
مشورہ دیا کہ C-130 جو مسافر بردار طیارہ ہے اسے استعمال کرتے ہیں۔ بات تو عجیب سی تھی، پرمیشن لی گئی، اجازت مل گئی، تو انہوں نے، کیونکہ وہ ٹیکنیشین بھی تھے، وہ کافی اس میں چینج کر کے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس C-130 کو جو مسافر بردار طیارہ ہے اسے میں ہی استعمال کروں گا، اور وہ کامیابی کے ساتھ مختلف ایریاز میں بمباری کر کے آئے، اور اجازت ملنے کے بعد 13 اور جگہ پہ وہ گئے۔ تو یہ پیش رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مزید ایک نام اور گزرا ہے، دانیل، اور اس کے ساتھی رات لیٹ مشن سے لوٹے تو بتایا جاتا ہے کہ اپنے بٹ مین کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، خبر ملی کہ ساتھی جو ہیں وہ گھیرے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کی ہیلپ کے لیے چلے گئے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ساتھیوں کی مدد کرتے کرتے ان کو 3 گولیاں لگیں، واپس آئے، ڈاکٹر گولیاں نکال رہا ہے تو یہ کہتا ہے یہ میری ماں کو دیجئے گا، یہ میرے لیے اعزاز ہے، انعام ہے، آسان نہیں ہے۔ کئی ایک نام جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ پھر ونگ کمانڈر ماروین لیزلے، مڈل کوٹ، ان کا نام پیش ہے، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ انہیں ڈیفینڈر آف کراچی کہا گیا ہے۔ مسرور بیس سے پتہ چلا کہ 65 کی جنگ میں حملہ ہونے والا ہے، انہوں نے اڑان بھری اور اتفاق ایسا ہوا، خدا نے عزت دینی تھی، دوسرے ممالک سے 2 جہاز انہوں نے مار گرائے جنہوں نے مسرور بیس کراچی پہ حملہ کرنا تھا۔ تو کراچی کے لوگوں نے انہیں کراچی کا محافظ کا خطاب دیا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ اردن چلے گئے۔ 71 کی جنگ سے پہلے پتہ چلا کہ حالات خراب ہیں، یہ وہاں سے آئے، انہوں نے بھی پیٹر کرسٹی کی طرح اپنے آپ کو والنٹیئر پیش کیا، اور یہ جب واپس لوٹ رہے تھے جو انہیں ہدف دیا گیا تو بتایا جاتا ہے بھارت بھوشن سونی کے بقول کہ 2 فائٹر جہاز انہوں نے حملہ کیا، بچ گئے، لیکن ان کے جہاز کا جو میزائل ہے ہٹ کیا، انہوں نے ایجیکٹ کیا اور گلف کے قریب سی سائیڈ میں وہاں جا گرے۔ تو بھارت بھوشن سونی کہتے ہیں کہ میں نے ریسکیو کو طلب کیا اور جا کے دیکھا، لیکن چونکہ وہاں شارک بہت ہیں مل نہ سکے۔ تو اردن کے شاہ حسین کہتے ہیں کہ ونگ کمانڈر لیزلے مڈل کوٹ کو آپ پاکستان کے پرچم میں تو ان کی رسم کریں گے، لیکن ہمارے لیے انہوں نے 68 میں اسرائیل کے خلاف جنگ کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سر کے نیچے اردن کا فلیگ بھی رکھا جائے۔ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات، ملک پاکستان کے ہیرو۔ اور پھر بتایا جاتا ہے ایک اور ان کی بیٹی انٹرویو دیتی ہیں لیزلے کہ ابھی بچپن ہی تھا اور انہیں پاکستان کے لیے سپیچ کرنی تھی، آزادی کے لیے۔ تو ایک لڑکا، کہتے ہیں مجھے نام بھی اچھے سے یاد ہے، علی، وہ کہتے ہیں آپ کا نام بھی عجیب ہے، آپ کرسچن ہو، آپ اس ملک کے نہیں ہو۔ کہتی ہیں میں نے انہیں غصے میں، جوش تھا، جذبات تھے پاکستان کے لیے، تو کمپلین آ گئی، والد صاحب کو بلایا گیا، تو والد صاحب نے ساری سٹوری پوچھی، تو وہ
अपनी बेटी को कहते हैं कि पहली बात तो हम्बल रहना है। सेकंड, उन्होंने समझाने की कोशिश की, मेरे अकब में आप फ्लैग देख सकते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान का फ्लैग लेके आओ। उन्होंने कहा ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये अली का और दिगर मेजॉरिटी का है, लेकिन ये जो वाइट कलर है ये मारवन मिडिल कोर्ट विंग कमांडर लेज़ले और उसकी बेटी का है। और वो बताते हैं, कहते हैं कि जब तक मैं और आप, ये किसके साथ अटैच है? पोल के साथ। जब मैं और आप मजबूती से इस पोल को थामे रहेंगे तो ये ग्रीन कलर वाला आसानी के साथ लहरा सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुल्क के लिए अपने आप को वक्फ करें, सर्व करें। ये मुल्क हमारा है, इसे हमने आगे तक लेके जाना है। तो दानियल का मैं जिक्र कर रहा था, उनकी रगो नसों में भी उनके ख़ानदान का, फौजियों का खून दौड़ता है। दानियल, उनके वालिद आर्थर इमैनुअल, उनके अंकल फिलिप, दोनों ही फ़ौज में और फिर रिटायर भी हुए। आगे से चलूँगा चूँकि मुझे क्लोज़ भी करना है। सिसिल चौधरी का नाम आपने सुना हुआ है। सिसिल चौधरी 65 की जंग में शरीक रहे, 71 की जंग में ये महाज पर गए और बताया जाता है कि दूसरों की तरह इन्हें भी अमृतसर रडार के बावजूद जामनगर जाना, फिर दीगर जो थे उन्होंने भी कई एक पठानकोट और दीगर जो हदफ उनको दिए गए वहाँ पे गए। तो ये 65 की जंग में कामयाबी से वापस लौटे। 71 की जंग में फिर इन्हें मौका मिला कि अपने पाकिस्तान के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम दिफा में लड़ने वाले हैं। और बताया जाता है कि ये 4 टूटी पसलियों के बावजूद अपने साथियों की, अपने जो साथ जंग करने वाले थे उनकी हौसला अफजाई करते रहे और 14 मार्कों में इन्होंने हिस्सा लिया। इनका भी बताया जाता है कि ये जब वापस लौट रहे थे तो क्या हुआ कि ईंधन शायद ख़त्म हो गया, तो अगर नीचे उड़ान भरते हैं तो प्रॉब्लम होती। इन्होंने कई एक ऊपर ले गए मीटर और फिर वापस अपने हदूद में पहुँचे। और एक और दफ़ा का जिक्र मिलता है, क्योंकि जहाज़ भी बड़े कीमती थे ही नहीं। बताया जाता है कि ये दुश्मन पीछे लग गया तो एक मरतबा फिर इन्होंने इजेक्ट करना पड़ा, आग लग गई जहाज़ को। तो 300 गज़ का फासला तय किया इन्होंने बामुश्किल और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचे। और फिर इन दोस्तों ने इन्हें पकड़ा, उठाया और बताया जाता है कि 4 टूटी पसलियों के बावजूद ये 14 मार्कों में हिस्सा लिया। हुआ पता है क्या? बताते हैं कि ये एडमिट थे, रात को उठ के निकल गए, डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है। तो हमने यहाँ स्टार्ट लिया है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतें। फिर मैंने एक बदरू का भी जिक्र किया है, फिर मैंने फ़िरौन का भी जिक्र किया है। दुश्मन हमें अपना मती करना चाहता है। स्पिरिचुअल तौर पे भी इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाएं, और जिस्मानी तौर पे भी अगर मैं और आप आज़ाद किए गए हैं तो अपनी आज़ादी को अपने हाथ से जाने ना दें। लास्ट में फिर से मैं एक्सक्यूज़ करूँगा, माफ़ी मांगूँगा, और कसूर उनका भी था, खता हमारी भी थी। मैं और आप जब तक माफ़ नहीं करेंगे, हमारी धरती से, जैसे खुदा की आवाज़ आसमान से आती है, वो कहता है कि ज़मीन से कायन और हाबल के दरमियान इख्तलाफ हुआ
تو خداوند کی آواز آتی ہے، خداوند کہتے ہیں کہ ہابل کا خون زمین پر سے مجھے پکارتا ہے۔ سو آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں اور خدا کا ڈر خوف رکھیں۔ مذاکرات بڑے ضروری ہیں۔ سو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک کہتا ہوں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پہ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت